5वां बाब 25वीं आयत से शुरू करके 34वीं आयत के आखिर तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे और सुनेंगे। मरकुस के मुताबिक इंजीली बयान उसका 5वां बाब 25वीं आयत से यूं लिखा है, फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा न हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी। यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और फिलफौर उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यीशु ने फिलफौर अपने में मालूम करके कि मुझ में से कुव्वत निकली, उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई? उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तू कहता है मुझे किसने छुआ? उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उससे कह दिया। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नए अहदनामे में अनाजील अरबा या चारों अनाजील खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी खिदमत, तालीमात, अंदाज़े जिंदगी और इलाही कुदरत के मौजज़ात और करिश्मात का इल्हामी अंदराज है, जो आज भी हमारे ईमानों को जोश देते और हमें इस मकाम तक लाने का सबब बनती है कि हम ईमान लाएं कि यीशु मसीह ही खुदा का बेटा है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाए। अगर हम यूहन्ना के मुताबिक इंजीली बयान उसका 20वां बाब खोलिए मेरे साथ और पढ़िए। यूहन्ना के मुताबिक इंजीली बयान 20वां बाब, वहां पर इन बयानात के लिखे जाने का मकसद बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया गया है। 30वीं आयत और 31वीं 2 आयत, और यीशु ने और बहुत से मौजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए। ये जो लिखे गए हैं इनके अलावा और बहुत से मौजज़े, और अगर इसी इंजीली बयान के 21वें बाब की 25 आयत आप मेरे साथ देखें तो वहां लिखा है, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं समझता हूं
کہ جو کتابیں لکھی جاتی ان کے لیے دنیا میں گنجائش نہ ہوتی۔ اتنے کام مسیح خداوند نے الہی قدرت کے اس زمین پر کیے، لیکن 31ویں آیت میں لکھا ہے لیکن یہ اس لیے لکھے گئے، ان کے لکھے جانے کا پرپز، آبجیکٹ وہ یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ اور آج صبح ہم مسیح خداوند کی قدرت، اختیار کے عجیب کاموں پر غور کریں گے تاکہ ہمارے ایمان ایک دفعہ پھر سے جوش پکڑیں، روشنی پائیں، جلا پائیں، اور ہم ایمان کے سفر کو جاری رکھ سکیں۔ مرکس اپنے انجیلی بیان کے 5ویں باب میں 3 معجزات کا ذکر کرتا ہے، اور یہ تینوں لوگ جن کے لیے یہ معجزات کیے گئے تقریباً ایک ہی طرح کی سچویشن سے، صورتحال سے، کنڈیشن سے، پروسیس سے گزر رہے تھے۔ پہلی آیت سے ہمیں ایک شخص کا ذکر ملتا ہے جو ڈیمن پوزیسڈ تھا، بدروح گرفتہ تھا، اور کلام اس کی حالت یہ بیان کرتا ہے کہ کوئی اسے زنجیروں سے بھی نہ باندھ سکتا تھا، کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا۔ آؤٹ آف کنٹرول سچویشن، نہ اسے کوئی شفا دے سکا، نہ کوئی چنگا کر سکا، نہ ابلیس کو نکال سکا، اور نہ ہی کوئی ابلیس کے سبب سے جو اس کی حرکات تھیں ان کو قابو میں لا سکا، بلکہ لکھا ہے کہ وہ زنجیروں کو توڑ ڈالتا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا تھا، قبرستانوں میں رہتا تھا، شور مچاتا تھا، اپنے آپ کو زخمی کرتا تھا، اور انسانوں نے اسے اس حالت میں اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ اس کا کوئی علاج اور امید ہمارے پاس نہیں ہے۔ دوسرا، ایک عبادت خانے کا سردار، ایک بدروح گرفتہ شخص جس کے بدن پر، جس کی روح پر ابلیس نے قبضہ کیا ہوا تھا، ابلیس نے اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ دوسری طرف ایک نہایت مذہبی شخص، ایک عبادت خانے کا سردار، وہ مسیح کے پاس آتا ہے اور اس کے قدموں میں گر کر منت کرتا ہے، سماجت کرتا ہے، درخواست کرتا ہے کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے، تو آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ ایک مذہبی شخص کی بیٹی بیمار، اور بیماری آخری سٹیج پر، شاید دنیا کے ڈاکٹرز نے، حکیموں نے اس کو یہ کہہ دیا کہ اب کوئی امید باقی نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ یسوع مسیح کے پاس آیا۔ نیکسٹ سنڈے خداوند کی مرضی ہوئی تو ہم اس پر غور کریں گے۔ تیسری، ایک ایسی عورت جس کو 12 برس سے خون جاری تھا۔ تینوں ایک ایسی کریٹیکل سچویشن کے اندر جہاں پر امید نہیں ہے، تسلی نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، کچھ باقی نہیں ہے۔ 12 برس سے اس کو خون جاری تھا۔ ہماری اردو بائبل میں لکھا ہے کہ 12 برس سے اس کو خون جاری تھا، لیکن
इंग्लिश तराजुम के अंदर ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर लिखा है कि खून का एक ना रुकने वाला चश्मा फुहारा उसके बदन से जारी था। गौर कीजिए उसकी फिजिकल कंडीशन क्या थी, जिस्मानी हालत क्या थी, और संजीदगी से जरा गौर कीजिए। अगर किसी शख्स के एक दिन में एक कतरा खून जाया होता हो और 12 वर्ष के अंदर उसकी कंडीशन क्या हो जाती होगी। उसकी बीमारी की बाबत मुफस्सर बहुत सी तौजीहात पेश करते हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि जहां बाइबल खामोश है वहां हमें क्यास आराइयां करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेडिकल ये कहती है कि ये ऐसी सूरत हाल है जहां खून जाया भी हो रहा था, बनते में भी बड़ा अमल प्रोसेस था, मुश्किल था ये। और अब गौर कीजिए किस तरह की हालत के अंदर वो औरत जिंदगी गुजार रही थी। 12 साल एक मुद्दत, और इसके रूहानी मानी भी। इसराइल के 12 कबीले, मसीह के 12 शागिर्द। मैं इस बात पर कोई आज तोज़ी पेश नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ एक इशारा देना चाहता हूं। 12 साल से 12 बरस से खून की नदी उसके बदन से जारी, इंतहाई कमजोर, लागर, अनीमत, खून की कमी में गिरफ्तार औरत। ये तीनों लोग जिंदगी और उम्मीद से बिल्कुल खाली हो चुके थे। इंसानों के पास, मजहब के पास, तबीबों के पास इनका कोई इलाज मौजूद नहीं था, इनके लिए कोई उम्मीद नहीं थी। एक तरफ बदरूहों का लश्कर, दूसरी तरफ एक बेटी जिसके मौत सर पर चढ़ी हुई है, तीसरी एक ऐसी औरत जो आहिस्ता आहिस्ता मौत की तारीक और स्याह परछाइयों का शिकार होती जा रही है। मरना इतना मुश्किल नहीं जितना जी जी कर मरना मुश्किल हो जाता है। हौलनाक, हैबतनाक साए में जिंदगी गुजारना, पता नहीं कल मेरे साथ क्या होगा, अगले लम्हे मेरे साथ क्या होने वाला है। इस तरह की हालत के अंदर ये औरत गिरफ्तार थी। और कलाम कहता है कि कई तबीबों से, हवाला निकालिए जरा, मरकुस के मुताबिक इंजीली बयान 5वां बाब, वहां लिखा है, और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी। तबीब उसके लिए, डॉक्टर्स उसके लिए शिफा का सबब ना बन सके, बल्कि उनकी मेडिकेशन, उनका इलाज उसके लिए तकलीफ को बढ़ाने का सबब हुआ। और कहा जाता है मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की, और जूं जूं इलाज होते चले जा रहे थे, तकलीफ बढ़ती जा रही थी। अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गए थे। हम मसीही लोग जो बाइबल पर ईमान रखते हैं, हमारा ईमान यह है कि यहोवा राफे शिफा देता है। बाइबल का खुदा शाफी है, वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर शिफा बख्शता है। उसके बेटे के लहू की कुदरत के अंदर, कलाम की कुदरत के अंदर पाक रूह की हजूरी और अबर के अंदर शिफा पाई जाती है, जिंदगी पाई जाती है, उम्मीद पाई जाती है, तसल्ली पाई जाती है। माल की कसरत से आप ना जिंदगी बढ़ा सकते हैं और ना शिफा पा सकते। अगर कोई इस घमंड के अंदर, इस जोहम के अंदर
और इस कंफ्यूजन के अंदर जिंदगी गुजार रहा है कि मेरे पास दौलत है, मैं बीमारियों पर गालिब आ सकता हूं, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है और इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। शिफा खुदा देता है। लेकिन मैं आज सुबह यह भी वाज़ेह करना चाहता हूं, मैं हरगिज ये तालीम नहीं दे रहा कि ईमानदारों को डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये देख लें जिसके पास आप जाते हैं वो डॉक्टर ही है, वो हकीम ही है, या कोई दूसरा काम भी साथ उसने जारी रखा हुआ है। मैं मना नहीं कर रहा और ना मैं ये कह रहा हूं कि ये गाओ कि दवाइयां हम नहीं खानी। अगर खुदावंद की मर्जी है कि वो मेडिसिन से हमें शिफा दे, सेहत को बहाल रखे, इसके लिए खुदा का शुक्र हो। लेकिन अगर वो चाहे तो इनके बगैर भी हमें शिफा देने की कुदरत रखता है। शिफा ना खरीदी जा सकती है, ना दवाइयों के अंदर है, ना इलाज के अंदर है, ना डॉक्टर्स के पास है। शिफा आसमानों से आती है और यहोवा खुदा जो हमारा शाफी खुदा है, शिफा का मंबा और मरकज वो है। हीलर शिफा नहीं देते, टेलीविजन पर हाथ रखने से शिफा नहीं मिलती, पानी और तेल टेलीविजन के आगे रखने से शिफा नहीं मिलती। शिफा यहोवा के पैरों के नीचे मिलती है, उसके फीदर्स के नीचे आ जाने वालों को नई जिंदगी, हयात नौ, शिफा, बहाली मिल जाती है। इस तरह की हालत के अंदर ये औरत जिंदगी गुजार रही, हर रोज मौत का तस्वुर करती, हर रोज मौत की बाबत सोचती। शायद वो दुआ करती थी कि मैं मर क्यों नहीं जाती, इस जिंदगी से तो मौत बेहतर है। लेकिन ये भी खुदा के इख्तियार में है और वो ना मर रही थी ना जी रही थी, एक अजीब क्रिटिकल लाइफ के अंदर जिंदगी गुजार रही थी। शायद आज सुबह हम में से कोई इस तरह के हालात में से गुजर रहा है। उसकी जिस्मानी हालत यह थी कि वो कमजोर, लागत माल खर्च करके कोई शिफा न मिले। डॉक्टर्स ने उसको कह दिया अब तेरे लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं है। जैसे आज डॉक्टर्स कहते हैं ना, इसे घर ले जाओ, इसकी सेवा करो, इसकी खिदमत कर लो। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं। और उसकी रूहानी हालत यह थी, निकालिए अखबार की किताब मेरे साथ और पढ़िए। अखबार की किताब 15वां बाब, खुदा का कलाम खोलिए मेरे साथ। ये अखबार की किताब जल्दी से खोलिए, 15वां बाब, 19वीं आयत से। और ये अखबार की किताब, ये बड़ी जरूरी किताब है बनी इस्राइल के लिए भी और आज के नए अहद के ईमानदारों के लिए भी। उनके लिए जिस्मानी हालत का बयान था, हमारे लिए रूहानी हालत का बयान है कि किस हालत में हमें उसकी हजूरी में और मस्कुनों में आना चाहिए। और अगर किसी औरत को ऐसा जरियान हो कि उसे हैज का खून आए तो वो 7 दिन तक नापाक रहेगी, और जो कोई उसे छुए वो शाम तक नापाक रहेगा। और जिस चीज पर वो अपनी नापाकी की हालत में सोए वो चीज नापाक होगी, और जिस चीज पर वो बैठे वो भी नापाक हो जाएगी। और जो कोई उसके बिस्तर को छुए वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और जो कोई उस चीज को जिस पर वो बैठी हो छुए, गौर कीजिए, वो अपने कपड़े धोए और पानी से नहाए और शाम तक नापाक रहे।
اور اگر اس کا خون اس کے بستر پر یا جس چیز پر وہ بیٹھی ہو اس پر لگا ہوا ہو اور اس وقت کوئی اس چیز کو چھوئے تو وہ شام تک ناپاک رہے۔ اور اگر مرد اس کے ساتھ صحبت کرے اور اس کے حیض کا خون اسے لگ جائے تو وہ 7 دن تک ناپاک رہے گا، اور ہر ایک بستر جس پر وہ مرد سوئے گا ناپاک ہوگا۔ اور اگر کسی عورت کو ایام حیض چھوڑ کر یوں بہت دنوں تک خون آئے یا حیض کی مدت گزر جانے پر بھی خون جاری رہے تو جب تک اس کو یہ میلا خون آتا رہے گا تب تک وہ ایسی ہی رہے گی جیسی حیض کے دنوں میں رہتی ہے، وہ ناپاک ہے۔ انسانوں کے لیے، ستائے ہوئے لوگوں کے لیے، دکھوں کے مارے ہوئے لوگوں کے لیے خدا کی حضوری، خدا کا مسکن ان کے لیے جائے پناہ رہا ہے کہ وہ بھاگ جائیں پناہ کے لیے خدا کی حضوری میں۔ لیکن غور کیجئے اس شخص، اس مرد، عورت، اس معاشرے، اس سوسائٹی کی حالت پر جس کو خدا کے مسکنوں سے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا جائے، نکال دیا جائے تو ناپاک ہے، تیرے لیے جگہ نہیں ہے، تو دعا نہیں مانگ سکتی، شریعت کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، کوئی تجھے چھو نہیں سکتا، کوئی تیرے بستر پر بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ تو ناپاک ہے۔ اس حالت میں انسان کی پناہ جاتی رہتی ہے، کوئی جگہ اس کے چھپنے کے لیے نہیں رہتی، امید ٹوٹ جاتی ہے، آس ٹوٹ جاتی ہے جب خدا کہ مسکنوں کے دروازے کسی کے لیے بند ہو جائے۔ اور یہ انسانوں کا لیگلزم، آج بھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس نئے عہد کے اندر اس حالت میں پاکشاہ لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے، چرچ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔ غور سے سن لیجئے، آج ہم ان قوانین کے پابند نہیں رہے ہیں۔ اگر یسوع کا لہو ہمیں موروثی گناہ اور ناپاکی سے پاک کر سکتا ہے تو یہ عارضی چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ ہر ایک وہ شخص جو یسوع کے لہو سے دھلا ہے، ہر روز اس کے چشمے کے نیچے آتا ہے، اس کے لیے حضوری کے دروازے بند نہیں کیے جا سکتے ہیں اور ان کو ناپاک ٹھہرایا نہیں جا سکتا ہے۔ ڈاکٹرز نے کہہ دیا کوئی علاج نہیں، حکیموں نے کہہ دیا کوئی امید نہیں، پیسے ختم ہو گئے، اب تو شاید کوئی ادھار بھی نہیں دیتا ہوگا، اور انہیں بچنا کہ نہیں بچنا، انہیں واپس بھی کرنے نے کہ نہیں کرنے، اور اب وہ موت کا انتظار کر رہی ہے۔ موت کا کیلنڈر اس کے ذہن پر چھایا ہوا ہے اور وہ اپنی تاریکی کے اندر ڈوبتی چلی جا رہی ہے۔ گھٹا ٹوپ موت کی تاریکیوں نے اسے گھیرا ہوا ہے۔ ایک دن ان تاریکیوں کی وادی میں زندگی کا نور چمک اٹھا اور کسی شخص نے اس کو یہ بتا دیا تیرے لیے امید باقی ہے، تیرے لیے آس باقی ہے، انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب مال خرچ کرنے سے شفا نہیں ملتی، اب طبیبوں کے پیچھے بھاگنے سے شفا نہیں ملتی، ایمان لانے سے نہ صرف بدن کی بیماریاں بلکہ روح کی بیماریاں، گناہ کے سبب سے موت کا سینٹینس وہ بھی جاتا رہتا ہے۔ کسی نے اسے کہا حوصلہ رکھ، تیری بیماریوں کا علاج یسوع ناصری دنیا میں آ چکا ہے، تیرے بجھتے ہوئے چراغوں کو جلانے والا، تجھے تاریکی کی وادیوں سے نکال کر عجیب روشنی میں لے جانے والا دنیا میں آ چکا ہے۔ بی بریو،
बी करेजियस। और आज सुबह यही पैगाम मेरा आपके लिए है। मुझे मालूम नहीं आप किस बीमारी से लड़ रहे हैं, किन हालात के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन मेरे पास पैगाम यह है, यीशु नासरी मौत के बंध तोड़कर जिंदा कर देने की कुदरत रखता है। बीमारी के जुओं को तोड़कर शिफा देने की कुदरत रखता है, और वो मुर्दों में से जी उठा है। उसकी कब्र खाली है, और वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। क्या खूबसूरत पैगाम लिखा है। यीशु का हाल सुनकर, यीशु की बाबत सुनकर खुदा ने नस्ल इंसानी पर रहम कर दिया है। पहले क्रिसमस की रात उसने अपने कलमे को जमीन पर भेज दिया, जो बशरियत का लिबास ओढ़कर बैतलहम की चरनी में पैदा हुआ। उसका नाम यीशु रखा गया। उसके आने से नूर बिखर गया, उसके आने से जिंदगी के गीत मिल गए, उसके आने से इब्लीस की बादशाही का जोर टूट गया। और इंजीली बयानात बताते हैं वो तूफानी लहरों पर चलता था, बिखरी हुई लहरों पर चलने वाला। उसको बताया गया ऐसा अजीब शख्स दुनिया में कभी नहीं हुआ। वो हुक्म देता है तूफान थम जाते हैं, वो बोलता है कोड़ी पाक हो जाते हैं। उसके कलाम की कुदरत से 4 दिन का मुर्दा कफन से बंधा बंधाया बाहर आकर खड़ा हो जाता है। तहारत के मटके मैं में बदल जाते हैं, गुनाह मुआफ हो जाते हैं, लंगड़े चलना शुरू कर देते हैं, अंधे देखते हैं। इस पैगाम के अंदर ताकत और कुदरत थी कि उस औरत ने जो मरने के करीब थी जिंदगी को कबूल कर लिया। आज के दौर के इंसान की सबसे बड़ी जरूरत वो इंजील है। हालात, बीमारियां, डॉक्टर्स की आरा, टेस्ट जो लेबोरेटरियां देती हैं, बहुत दफा हमारे ईमान के चिराग को गुल करने के करीब कर देती हैं। लास्ट स्टेज है, अब उम्मीद बाकी नहीं रही है, अब कुछ नहीं हो सकता। जहां दुनिया नो कर देती है वहां मेरा यीशु यस करता है। जहां पर डॉक्टर हाथ उठा लेते हैं वहां पर यीशु हाथ रखता है। नई तारीख रत्म होना शुरू हो जाती है, अजीब काम होना शुरू हो जाते हैं। आज जिस दौर में मैं और आप रह रहे हैं वहां पर जदीद मुल्क और कदीम मुल्क एक सी हैसियत रखते हैं। अगर हमारे जैसे मुल्कों में ओमिक्रॉन और कोरोना का थ्रेट बढ़ता जा रहा है तो अमेरिका जैसे जदीद मुल्कों के अंदर भी लोग ओमिक्रॉन से डर रहे हैं, कोरोना से डर रहे हैं। डेंगू लोगों के लिए थ्रेट बना हुआ है। कैंसर, शुगर और बेशुमार बीमारियां जो अपनी गिरफ्त इंसानों के बदनों पर हर रोज बढ़ा रही हैं। मैं आज सुबह खुशखबरी देना चाहता हूं कि कोई चीज आपके बीमार बदनों पर से शैतान और बीमारियों और तारीकी की गिरफ्त को खत्म नहीं कर सकती है, लेकिन इंजील के पैगाम के अंदर यह कुदरत पाई जाती है। जब यह सुनाया जाता है, बोला जाता है, पढ़ा जाता है, सुना जाता है, एक अजीब इनविजिबल काम हमारी जिंदगी के अंदर, हमारी रूह के अंदर, हमारे बदन के अंदर होता है कि शैतान के पंजे ऑटोमेटिकली उखड़ना शुरू हो जाते हैं, बीमारियों के पंजे उखड़ना शुरू हो जाते हैं, मौत लर्जा हो जाती है, आलमे अरवा की कुव्वतें पीछे हटना शुरू हो जाती है। अगर इस दौर में ईमानदारों जिंदा रहना है तो इंजील को अपना ओढ़ना और बिछौना बना लो।
बजाय इसके कि हम ये गौर करते रहे ओमिक्रॉन कहाँ से आया है, इसके परहेज क्या हैं और इसका इलाज क्या है, और गौर करें यीशु क्यों दुनिया में आया था और उसके आने से मुझे क्या मिला है। ये जरूरी है। रोमियों के खत में मुकद्दस पौलुस रसूल 10वें बाब की 17 आयत में कहता है, ईमान सुनने से पैदा होता है। तब जब ये कलाम इस कान से इस कान के रास्ते बाहर ना निकल जाए। अगले इतवार पूछो पिछले इतवार कलाम क्या था, कख पता नहीं, तो मैनू फिर भी पता लगता ईमान के नग पैदा होया होना। जब ये आपकी रूह आपके दिल की उम्दा जमीन के अंदर चला जाता है, ईमान की फसल पैदा होना शुरू हो जाती है। जूं जूं तारीकी बढ़ती है, रोशनी की जरूरत ज्यादा होती जाती है। जूं जूं ये दुनिया और इसका मॉडर्निज्म और इसकी तरक्की और इसकी जदीद साइंस मौत की तारीकियों में छुपती जा रही है, मसीह की बाबत जिक्र करना उतना ही जरूरी होता चला जा रहा है। जाओ जाकर सारी खलक के सामने गिरजे के चंदे के कार्ड बांटो, उनको कहो हमारे मेंबर बन जाओ। जाओ जाकर सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो। खलक की डेस्परेटेड नीड इंजील है। इंजील जब सुनाई जाएगी, ना सिर्फ मेरे बातिन बल्कि मेरे बहर, मेरी कौम, मेरे मुआशरे, मेरी सोसाइटी, मेरे मुल्क के हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। दुनिया और उसकी खबरें हमारे अंदर से ईमान खत्म कर देती है। आम आदमी कोई बेचारा बीमार हो जाए, कुछ खास किस्म के लोग दुनिया में हैं, दो बंदे ओदा पता करने भेज दो, जे वो उठ जाए तो तां फड़ लो मैनू। फलाने नूं भी यही होया सी, जिंज तुहानूं है ना इंज ही ओनू सी, ते बचिया कोई नहीं जी। कोई आ जाता है, वो तो हस्पताल में ही तड़प तड़प के मर गया, ते जेड़ा जिउंदा हुंदा ना बेचारा, वो जन्म दियां सीढ़ियां नूं टुर पैंदा। क्यों नहीं बताते जाकर कि मसीह पर ईमान लाना इंसान को जिंदगी बख्श देता है। और मसीह ने कहा जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर जाए फिर भी जिंदा रहेगा। आज इस दुनिया की डेस्परेटेड नीड टिकटॉक्स नहीं है। आज इस दुनिया की डेस्परेटेड नीड मोहब्बत भरे आइकन्स भेजना नहीं है और फेसबुक पर तशहीर करना नहीं है। आज इस दुनिया की डेस्परेटेड नीड इंजील जो खुदा की कुदरत और रोशनी है वो है। आओ अहद करें इंजील सुनाने का, ताकि इस तरह के मरीज जो मौत के अंदर जा रहे हैं और इससे बढ़कर उनकी रूह पाताल की अथाह गहराइयों में उतरती जा रही है, वो मसीह के पास आकर जिंदगी पा जाए। आज हमारी दुनिया में 2022 के लिए बेशुमार प्रिडिक्शंस की जा रही हैं। सितारों का इल्म रखने वाले जादूगर पेशबीन वो कह रहे हैं बहुत खतरनाक हालात के अंदर हम दाखिल होते जा रहे हैं। हमें क्या बताते हो? हमें तो इस किताब ने बहुत पहले बता दिया था कि आखिरी दिनों में क्या होने वाला है, और हम ये भी जानते हैं कि हम आखिरी दिनों में से गुजर रहे हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं तूफानों का बादशाह हमारे अंदर और हमारे साथ है, और उसकी मौजूदगी में कोई चीज हमें लग़्ज़िश नहीं दे सकती है। मौत, सैलाबों का खतरा, एटमी जंगों का खतरा, बीमारियों का खतरा,
हर तरफ मुंडला रहा है। मुबारक है वो जिसकी उम्मीद खुदा का बेटा यीशु है, जिसकी उम्मीद याकूब का खुदा है। और मसीह ने अपनी जुबान मुबारका से कहा था, इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये खुदा के मुंह से निकला हुआ कलाम, जिसके अंदर जिंदगी पाई जाती है, ताजगी पाई जाती है। और ये इंजील हमारे ईमान के सफर की राह को रोशन कर देती है, हमें मसीह की पहचान दे देती है। सुना? मुझे लगता है लिखा नहीं, उठकर बैठ गई। अच्छा, ये है, कोई है जो मुझे रिहाई दे सकता है? हैकल ने दरवाजे बंद कर लिए हैं, लेकिन खुदा ने अपना बेटा आसमानी हैकल के दरवाजे खोलने के लिए भेज दिया है। उसके बाजू आज भी फैले हुए हैं, दुनिया के रद्द किए हुए, ठुकराए हुए मौत के सौदागरों के लिए आ जाओ मेरे पास, मैं जिंदगी का पैगाम लेकर आया हूं। अगर मजहब ने, दुनिया ने, हालात ने, मेडिकल ने, तिब ने तुझे ठुकरा दिया है, तो कलवरी का शहजादा आज सुबह तुझे बुला रहा है। ओ, वो कह रहा है, आ जाओ मेरे पास जिंदगी है। ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और उसके नाम से जिंदगी हो। जहां ईमान होता है वहां उसका इकरार होता है। यह हो नहीं सकता कि जुबान शैतान की बोले बंदा और अंदर ईमान हो। वही बोलेगा जो दिल में भरा है, वही मुंह पर आता है, यह भी मसीह ने कहा है। फिर हम एक्सक्यूज पेश करते हैं, भाई साहब ईमान ते बड़ा है, पेश नहीं जाती। ये कोई चाइना का ईमान आ गया? ईमान लाने वालों के दरमियान बोलो क्या होंगे? मौजज़े होंगे। ईमान लाओ, यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है। मसीह ने मर्था से कहा था, तू ईमान लाएगी तो खुदा का ईमान लाना शुरू करो। तुम्हारे घरों के अंदर, तुम्हारे कारोबार के अंदर, तुम्हारी जिंदगी के अंदर यहोवा का चेहरा रोशन होना शुरू हो जाएगा। इकरार क्या कर रही है? ईमान है तो इकरार क्या है? अगर मैं उसकी पोशाक ही छू लूंगी, कई तराजुम के अंदर लिखा है, अगर मैं उसकी पोशाक का किनारा छू लूंगी। आज सुबह आपका ईमान क्या है? बोले। कोई हीलर आए, आधा पौना घंटा मेरे सिर ते हाथ रखे, हिला हिला के मेरी धौन दे मोरे हिला दे, फिर मुझे शिफा मिले। आदी हो गए हम इन कामों के। कोई आए और फूंके मारे मुझ पर, ये पता नहीं क्या लॉजिक है। कोई आए और वो ये करे वो करे। पानी दियां 7-7 14-14 पुड़ियां बना देंगे ने, एक ढक्कन सवेरे पी ली, एक शाम को पी ली। क्या ईमान का इकरार है? मसीह ने हमेशा कहा, तेरे ईमान के मुआफिक। अगर आज सुबह मेरा और आपका ईमान यह है कि यीशु जो शाफी है, खुदा का इकलौता बेटा, जिसके मार खाने से मैंने शिफा पाई है, वो आज सुबह इस चर्च में कलमाते बरकत होने से पहले मुझे बदल देगा। बीमारी जाती रहेगी, ना उम्मीदी जाती रहेगी, हर तरह के तरीकी और इब्लीस के बंधन टूट जाएंगे। आपके लिए ऐसा ही होगा, बाकी आपके लिए हो रहा है। खौफ बड़ा अंदर था। खौफ का सबब यह था, शर्म जाना कहीं तो बेटा चले जाओ, कि शरीयत के औराक ने उसे नापाक ठहराया हुआ था। वो मजमे में नहीं जा सकते थे।
ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਦਫਾ 44 ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦੇ। कोई पुरसाने हाल नहीं, मजहब ने कह दिया ये को ना जाओ नापाक हो जाओगे। खुदा ने एक शख्स भेजा, वो उसके पास गया, नापाक नहीं हुआ, औरत पाक हो गई। उसने जनाजे को छुआ, नापाक, जनाजा पाक हो गया। एक शख्स आया और वो आज सुबह इस चर्च के अंदर आया हुआ है। कलाम कहता है खौफ की मारी हुई, पता नहीं मैं सामने से जाऊंगी लोग मुझे क्या कहेंगे। और शरीयत ये भी कहती थी कि नापाक लोग अगर मजमे में आए संसार कर दिए जाएं, मार दिए जाएं। कैसे मैं मसीह के पास जाऊं? डरती हुई कांपती हुई पीछे से आ रही है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी इस कुव्वत के मंबे को छूने के लिए सम्मत की कोई जरूरत नहीं है कि सज्जा खब्बा या चढ़दा या लैंदा या दखन या पहाड़, इसको जिस तरफ से छू लिया जाए इसके अंदर से कुव्वत निकलती और शिफा बख्शती है। बड़ा डर रही थी, मैं पोशाक नहीं छू, कहीं माइंड ही ना कर जाए, कहीं गुस्सा ही ना कर जाए। बहुत ज्यादा यीशु की बाबत नहीं जानती थी। उसके जहन में यहूदी रब्बियों की तस्वीर थी और हमारे आज के घुमंड और गुरूर के मारे हुए जो नाम खादिम कहते हैं, अंदर से डिक्टेटर, हाथ नहीं मिलाते, मिलते नहीं किसी से। मेरा सूट इतने हजार का है और इसमें सिलवटें पड़ जाएंगी। पुत्र तेनू कभी अंदर दियां सिलवटां नजर आउण ना जड़ियां तेनू पईयां ने, तेनू लग पता जाए। यीशु तो बिल्कुल जुदा शख्सियत। बच्चे आए, शागिर्दों ने कहा बच्चों का इधर क्या काम है? उसने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो। बदरू गिरफ्तार है, उसने कहा आने दो। अब ये औरत आई, ये नहीं कि यीशु को पता नहीं था, उसको पता था, लेकिन उसने कहा जो ये करती है लेट हर डू। कलाम कहता है पीछे से आई और आकर। बहुत दफा हमारे पास ईमान भी होता है, ईमान का इकरार भी होता है, लेकिन ईमान का फेल नहीं होता। वो नमान से कहा गया जाकर यर्दन में 7 गोते मार, बरहम हो गया। ईमान है तो फिर जो कलाम कहता है वो कर। जहन ये बनाया था, इकरार ये किया था कि अगर मैं उसकी पोशाक छू लूंगी। पीछे से आई, उसकी पोशाक को छुआ। ये 11 केवी करंट को छूने से भी ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। 12 बरस से बीमार है, खून नहीं है, अनीमिक। छू लिया कुव्वत के सर चश्मे को, छू लिया मुजस्सम खुदा को। वो तो अभी कोई सीना पर उतरा भी नहीं था कि को सीना के धुएं छूट गए थे। अब तो वो इंसान बना है, इसलिए छुआ जा सकता है। उसने उसकी पोशाक के किनारे को छुआ। तो कलाम क्या कहता है, ये पढ़िए जरा। हम रोज छूते हैं, फर्क कोई नहीं पैदा। 5वां बाब, फिल फॉर, उसका खून बहना बंद हो गया। ये नहीं कि आज घटेगा, कल 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 घटता घटता घट जाएगा ना। फिल फॉर, उसका खून बहना। सिर्फ यही नहीं हुआ, और उसने अपने बदन में मालूम किया, मालूम हुआ नहीं, मालूम किया। उसने जानने की कोशिश की कि व्हाट हैपेंड विथ मी। मालूम यह हुआ मुझे तो इस बीमारी से शिफा मिल गई है।
ना कमजोरी रही और ना बीमारी रही। हम ऐसी कमजोरी में मुबतला हैं, दुआ करने वाले को कमजोरी हो जाती, साड़ी नहीं जाती, क्योंकि हमारा ईमान खुदा के बेटे से ज्यादा इंसानों पर है, टेलीविजन पर है, डीलरों पर, हीलरों पर है। शिफा यहोवा देता है, उसका कलाम, उसका बेटा, उसके बेटे का लहू। आज ईमान से छू तो सही। कलाम कहता है उसने अपने बदन में मालूम किया, कोई बंदा उसके पास नहीं गया कि सुनाओ मैं देखो दुआ तो बाद कैसा फील हो रहा है, नहीं तो फिर एक बार फिर करा दे, कैसा फील हो रहा है। ईमान से गवाही दे दो। ईमान को अन्नीकार बनाया इन्होंने। क्या कर रहे हैं? ईमान तो यकीन है, ना ईमान ना यकीन, ना उन्होंने बेचारे ਨੂੰ कुछ होया उन्होंने मैक फड़ा देंगे। क्या कर रहे हैं? छू लिया जाए आफताब सदाकत को तो फिर तारीकियां नहीं रहती। मसीह को छुआ, उसकी पोशाक का, मैं सब देख रहा था पोशाक के किनारे के लिए, बॉर्डर ऑफ द गारमेंट, ग्रीक जुबान का लफ्ज है क्रॉसपेडॉन। इसका मतलब है झालर, पल्ला, लैस या फीते का बना हुआ हाशिया। गिनती की किताब खोलिए, गिनती की किताब 15वां बाब पढ़िए मेरे साथ और बरकत पाइए। 15वां बाब 37वीं आयत। खुदा बनी इसराइल के कपड़े भी कैसे हों उनकी बाबत बता रहा है। आज नए अहद में हमें कोई तमीज ही नहीं रही कि चर्च में आने के लिए कैसे आना चाहिए और कैसे कपड़े होने चाहिए। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कहा कि वो नस्ल दर नस्ल अपने पैराहनों के किनारों पर झालर लगाए। वो जो चोगा पहनते थे, वो जो ओवरकोट पहनते थे, उसके पैराहन पांव की तरफ क्या लगाए? पांव के नीचे नहीं, नीचे की तरफ झालर लगाए। और हर किनारे की झालर के ऊपर आसमानी रंग का डोरा टांगे। इसको इंग्लिश में टेसल भी कहा जाता है और इसके मुख्तलिफ नाम है, डोरा टांगे। ये झालर तुम्हारे लिए ऐसी हो कि जब तुम उसे देखो तो खुदा के सब हुक्मों को याद करके, कपड़े भी ईमानदारों को पहनो जिससे खुदा के हुक्म तुम्हें याद आए। सब हुक्मों को याद करके उन पर अमल करो और अपने दिल और आंखों की ख्वाहिशों की पैरवी में जिना ना फिरो। जैसा हम मॉडल्स को देखते हैं उन जैसे कपड़े पहनते हैं, फिर शीशे में देखते हैं मैं उस जैसा क्यों नहीं लगता। छोड़ दो ये काम। कलाम कहता है बल्कि मेरे सब हुक्मों को याद कर के उनको अमल में लाओ और अपने खुदा के लिए मुकद्दस। खुदा ने अखबार की किताब में हुक्म दिया कि अपने पैराहन की तरफ झालर और उस पर नीले रंग का डोरा, जो तुम्हें याद दिलाएगा कि खुदा के अहकामात तुम्हारे लिए क्या है। खुदा की शरीयत की यादगारी, खुदा के अहकामात की यादगारी। छुआ, हुक्मों वाला वहीं मौजूद था। यर्मिया नबी कहता है वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। कपड़े पहने हों यस्सु ने, झालर हुक्मों की यादगारी के लिए लगी हो तो अजीब काम ना हो। छुआ और यस्सु को छूना यह कोई नई प्रैक्टिस नहीं थी। अगर आप लूका के मुताबिक इंजील 4 बाब नामी आयत लिख लीजिए और घरों में पढ़िए, वहां पर लिखा है लोग बीमारों को लाते थे ताकि वो यीशु को छू ले, इससे भी हीलिंग होती थी।
ਨਾ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ड्रोन, ना इंजदी कोई शय जिहदे नाल फेसबुक ते तस्वीरां लगन। ना ना ना, वो इस बात का मोहताज नहीं था। छुआ, शिफा पा गई। मसीह ने पीछे मुड़कर कहा, किसने मुझे छूने वाली और जिसको छुआ गया उनके दरमियान एक कनेक्शन है। ये कोई डंडे ते सोटा नहीं टंगया, जेड़ा डंडे ते कपड़ा नहीं टंगया जेड़ा मर्जी हथ ला जाए। इनू लाउना ते लग पता जाना है। ते सिर्फ बंदे नू नहीं पता लगता, उन्होंने सताउण वालियां नू भी लग समझ जाती है जदों छड्ड के भजना पैंदा है। उसने कहा, किसने मुझे, शागिर्द आ गए। लो जी, ये भी कोई हुण दसो कोई गल है जी करने वाली। लोग आप पर गिरे पड़ते हैं, आपको दबा रहे हैं। यीशु जानता था अटखेलियां करने वालों में, ऐसे ही गिर गिर कर पड़ने वालों में और ईमान से छूने वालों में फर्क होता है। बड़े पाक लोग शरा के आलम भी होंगे, उनकी पैरवी करने वाले भी होंगे, भीड़ के अंदर थे, मिला कुछ नहीं। मौजज़ा वो ले गई जिसने ईमान से छू लिया। अगर मैं उसकी पोशाक ही छू लूंगी। आज हम सारे का सारा यीशु अपने अंदर लिए फिरते हैं, शिफा कोई नहीं। क्यों? ईमान कहां गया? मसीह ने अक्सर अपने शागिर्दों से कहा, तुम्हारा ईमान कहां गया? जगाओ ईमानों को ताकि तुम शिफा पाओ। ईमान से छूना फर्क पैदा करता है। इसके अंदर यह ताकत होती है कि ये पल भर में हालात बदल देता है। पिछले दिनों मेरा वास्ता डेंगू से पड़ा, मेरे प्लेटलेट्स गिर गए, 90 तक चले गए। डॉक्टर परेशान था कि इनको प्लेटलेट्स लगाने पड़ेंगे, इसके खतरात होते हैं, बेशुमार वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा था। मेरे और डॉक्टर के दरमियान डॉक्टरों का डॉक्टर आ गया। एक दिन कराए 90, एक दिन कराए 86। जब तीसरी दफा कराए 264 थे। दरमियान में यीशु आ गया। फिर ना बीमारी रही ना कमजोरी रही। लोगों ने मुझे बड़ा डराया, यदि कमजोरी नहीं जानती। मैंने कहा, मैं यहूदा के कबीले का फॉलोअर हूं, हम कमजोरी को मानते ही नहीं। यीशु मेरा जोर है। हालेलुया। आज सुबह ईमान ले आओ। डॉक्टर्स की रिपोर्ट क्या है, डॉक्टर क्या कहता है, दुनिया क्या कहती है, इनको रद्दी की टोकरी में डाल दो। सबसे अहम बात, ये किताब क्या कहती है? जिंदगी की किताब, ईमान की किताब। फेसबुक के दीवानों, फेथ बुक को पढ़ा करो। तुम्हारे अंदर ईमान पैदा हो और तुम इन झंझटों से छूट जाओ। यीशु ने कहा, नहीं नहीं, किसी ने मुझे छुआ है, मुझ में से कुव्वत निकली। कुव्वत हो तो कुव्वत निकलती है ना। और फिर ये प्रैक्टिस तो यहां तक गई, रसूलों के अमाल की किताब के अंदर 11वें बाब की 19 आयत में लिखा है, लोग पौलुस के बदन से कपड़े लगा कर ले जाते थे। पाकिस्तान में एक दुआया पैरा चर्च मूवमेंट शुरू हुई थी। उन्होंने रुमाल बेचने शुरू कर दिए थे, तेल बेचने शुरू हो गए। आज पानी बिकते हैं, तस्वीरें बिकती हैं, मसीह को बेच रहे हैं। पौलुस बदन दे नाल कपड़ा लाउण दे पैसे नहीं सी लैंदा। नहीं, लोग लगा कर ले जाते थे, बीमारों पर डालते थे, वो बदरूहें तक निकल जाती थी। दीवाना यीशु का हो, प्रस्तार यहोवा खुदा का हो,
मुनाद इंजील का हो और कुवत ना निकले। डरती हुई पीछे से आ गई, सहमी हुई, डरती हुई। किसी ने जाकर नहीं कहा उथे जरूर कहना ही हिजकियल रहमत दी दुआ नाल शिफा हुई है। नहीं, कोई नहीं गया, डरती हुई आ गई और आकर सारा हाल पढ़ो। बाइबल च क्या लिखे? सच सच उसे कह दिया। कोई उसके अंदर आमेजिश नहीं हुई। हमारी गवाहियां खुदा करे सच सच पर मबनी हो। आ गई, कह दिया। मसीह ने उससे कहा, पढ़िए, गौर से पढ़िए, कलाम की तरफ तवज्जो लगाइए। मरकुस के मुताबिक इंजीली बयान 5वां बाब, उसने उससे कहा। अगला लफ्ज ये लड़कियां पढ़ेंगी। क्या कहा? शरीयत कहती थी नापाक, परे कर दो नापाक। लोग कहते थे ये लाइलाज बीमारी में मुब्तला है, डरो भरा के सानू ना लग जाए। है? शरीयत कहती है नापाक, लोगों का ओपिनियन ये है ये पेशेंट है। यीशु का ओपिनियन ये है बेटी। बेटियां बनो मसीह की। बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिले। किससे? ईमान से तुझे। वो ईमान जो फर्क पैदा करता है, जो छूने से शिफा पा जाता है। वो ईमान नहीं जो सो के चला जाता है। तेरे ईमान से तुझे। मैं सुबह चेक कर रहा था शिफा के लिए, वहां पर लफ्ज है ग्रीक जुबान का सोजो। जब जिब्राइल फरिश्ता आया मुकद्दस यूसुफ के पास और उसने कहा था तू उसका नाम, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। वहां पर भी लफ्ज सोजो है। मसीह को छुआ, सिर्फ बदन की हालत नहीं बदली, रूह की हालत भी बदल गई, निजात मिल गई। आज घर में चाहिए निजात ते लखा। बहुत दफा हम निजात के बगैर ही गा रहे होते हैं, लेकिन दाऊद कहता है तेरी निजात दे शौक दे विच निजात मिल गई, शिफा मिल गई। दो बातें बरकत मिली। सलामत जा। कैसे जा? शलोम इब्रानी जुबान का लफ्ज, सेहतमंदी, कामलियत, सालमियत, और अपनी इस बीमारी से बची रहे। दोबारा अटैक नहीं। सलामती यीशु देता है, गलबा यीशु देता है, लेकिन उनको जो ईमान से यीशु को छू लेते हैं। आज सुबह मेरी हालत क्या है, मेरी कंडीशन क्या है? बीमार होना यह कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बीमार होकर उसके कब्जे में पड़े रहना, उसकी गिरफ्त के अंदर पड़े रहना, यह बताता है मेरे ईमान की आग ठंडी हो चुकी है। खुदा ने मुझे खास यह पैगाम दिया ताकि हमारे ईमानों की आग भड़क उठे। हमारा ईमान यह हो मैं उसकी हजूरी में पांव ही रखूंगा और रखूंगी तो मेरे बंधन टूट जाएंगे, मुझे रिहाई मिल जाएगी, मुझे शिफा मिल जाएगी। और इस नाजुक दौर के अंदर जितना ज्यादा यीशु की बाबत गौर कर सकते हो, जान सकते हो, पढ़ सकते हो, गा सकते हो, दया करो। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। गीतों में भी कलाम है, गाया करो। यीशु मेरे नाल नाल रहता है, वो मेरी कुव्वत, वो मेरी पनाह, वो मेरा कुव्वत बख्शने वाला खुदा है। आइए अपने सर झुकाएं और आज सुबह
पाक रूह से कहें, मेरे ईमान की आग को हरारत बख्श दे।